Hello friends, welcome to Helping Brains. So from today onwards, I will be discussing all the Indian philosophers one by one. So our first topic is Charvak philosophy. Okay, you can call it Charvaka, you can call it Charvak. Okay, but this is not Karvaka. Okay, CAR. It doesn't mean Karvaka. Okay, in philosophy, if we can use here H or we can omit it. Okay, it doesn't make any sense. It is Charvak philosophy. Okay, it is basically a school. So I already covered the introductory part. Okay, there are 5 lectures. You can find them in the playlist, philosophy playlist. Okay, go to our channel and then go to the playlist of philosophy. There you will find the introductory lectures. Okay, so first go through them, then only you will be able to understand all these philosophers in a better manner. Okay, so let us start Charvak philosophy. So Charvak philosophy, basically we have 3 topics. Okay, theory of knowledge of or epistemology. Okay, we have already discussed this topic in our introductory lecture. Second is rejection of transcendental entities or metaphysics, and third is ethics of Charvak. Okay, so there are 3 topics. After that we will see the concluding remarks, and then we will see the questions which have been asked by UPSC or other important questions related to Charvak philosophy. Okay, so let us start with some introduction. Introduction as such is not important for your UPSC, but if you are writing for UPSC optional, but if you are writing some exams such as your state services exam and your some net exam, or then questions may be asked from introductory part also. Okay, but from UPSC point of view, these 3 topics are important: theory of knowledge, second is metaphysics, and third is ethics. Okay, so let us start. So introduction, basically Charvak philosophy supports materialism. Materialism I already discussed in detail in our introductory lectures, which you can find, okay, in the playlist of philosophy. But if I will define materialism, materialism means a metaphysical theory which holds that matter is the only reality. Basically, they have explained each and everything on the basis of matter. They have not accepted soul, God, consciousness, etc. According to them, only matter is the ultimate reality. So we can call them materialistic philosophers. Okay, जो सिर्फ आपके materialistic चीजों के पीछे भागते हैं, भौतिकवाद. Okay, so चारवाक जो philosophy है, it supports materialism. Even they have explained soul, consciousness, etc. on the basis of your matter. Okay, so उनके हिसाब से matter ही सब कुछ है. Okay, so materialism is a metaphysical theory. Okay, for in detail you can find about metaphysics in our playlist. Okay, I already covered metaphysics and epistemology, okay, in detail. Then materialism means they have explained mind and consciousness also as the epiphenomena of matter. Here epiphenomena means byproduct. Okay, here epiphenomena means byproduct. Okay, so epiphenomena means byproduct. It means they have explained even your mind and consciousness on the basis of your matter. According to them, everything has originated from matter. So now you can understand that how much materialistic they are. You can compare them with the thoughts of science. Science also believes that this world has been made of atoms. Science also doesn't believe in your soul, God, heaven, hell, liberation, etc. So Charvak philosophy is somewhat similar to science. They believe in materialistic things. Okay, they don't believe in spiritualistic things. Okay, so they basically this school originated basically in reaction to your Upanishadic philosophy. Okay, rituals which were present there at that time. Okay, तो rituals बहुत ज़्यादा थे आपके, ठीक है, और गरीब लोग तो सारे रिचुअल्स आपके फॉलो नहीं कर सकते, सेक्रीफाइसेस इतने ज़्यादा थे, उनको इतना ज़्यादा दान देना पड़ता था, वो नहीं कर सकते थे. तो जो बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा रिचुअल्स आपके उपनिषदिक जो आपके थॉट्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, एक ऑर्डिनरी पर्सन उन चीज़ों को नहीं समझ सकता. तो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझ सकता, तो उसके रिटेलिएशन में आपकी चारवाक फिलॉसफी डेवलप हुई. और चारवाक फिलॉसफी जो है वो सीधी सीधी बात करता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मेटेरियलिज्म सब कुछ है. उन्होंने गॉड सोल की बात ही नहीं की है. ओके, सो दे हैव बेसिकली रिड्यूस्ड द हायर फिनोमेना टू द लोअर वन.
Higher phenomena to the lower one means they have reduced everything, God, soul, okay, these are higher phenomena, and they have reduced everything to lower ones. Lower ones means matter. So basically here is your matter, okay, and at higher level you have your God, soul, rebirth, liberation, etc. So they have explained everything on the basis of matter. So we can say that they have reduced the higher phenomena to the lower ones. Okay. Now basically there is no literature exclusively related to Charvak philosophy. But then how can we find the basically the knowledge regarding Charvak philosophy? We find it from other literatures. ओके जैसे मान लो चारवाक ने कोई फिलॉसफी दी होगी तो बाकी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया होगा या उसके बारे में लिखा होगा, तो वहां पे उन्हें हमें उनकी थॉट्स मिलती है. तो इसकी थॉट्स हमें कहाँ मिलती है, इनके बारे में डिटेल्स कहाँ मिलती है? वी फाइंड इट इन वेदास, वी फाइंड इन बुद्धिस्टिक लिटरेचर. बेसिकली चारवाक फिलॉसफी was a reaction to the Upanishadic thoughts, okay, rituals. Then your Buddhism and Jainism, they were the reaction to Charvak philosophy. चारवाक ने इतना ज्यादा मेटेरियलिज्म प्रमोट कर दिया था कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी. चारवाक फिलॉसफी बोलती है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो. मैरी यहाँ पे MERRY वाला है, शादी वाला मैरी मत समझ लेना. ओके, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी. ओके, तो हमें इसकी नॉलेज कहाँ से मिलती है? वेदास से, ओके, बुद्धिस्टिक लिटरेचर से और एपिक्स से. चारवाक का खुद का कोई अलग से लिटरेचर नहीं है जिससे हमें उसकी नॉलेज मिलती हो. ओके, यानी देयर इज नो सिस्टमेटिक वर्क और एनी ऑर्गेनाइज्ड स्कूल ऑफ इट्स फॉलोवर्स. जैसे हम बुद्धिज्म में बात करेंगे तो बुद्धिज्म में त्रिपिटका की हम बात करते हैं, वहां से हमें नॉलेज मिलती है. लेकिन चारवाक फिलॉसफी में कोई भी, और एक बात और, चारवाक इज नॉट द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स बेसिकली ए थॉट. If you also believe in materialistic things, materialistic thought, then you also become a Charvak. So Charvak means related to materialism. If you don't believe in God, soul, rebirth, heaven, hell, and you also believe that this is the only life, and your objective is just to maximize the pleasure and minimize the pain, and you also believe in eat, drink, and be merry, then you are also Charvak. So Charvak means one who basically promote materialistic deeds and believes in materialism, and your spiritualism is sidelined. ना भगवान की पूजा करेगा, ना सोल को मानेगा, ओके, ना रीबर्थ को मानेगा, ना हेवन को मानेगा, ना हेल को मानेगा. ओके, तो दैट इज योर materialism. So why Charvak philosophy developed? I already discussed. Okay, in reaction to Brahminical thoughts, there was so much rituals, there was so much idealism of Upanishadic. बेसिकली जो आपके उपनिषद है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. ऑर्डिनरी पर्सन तो इनको समझ ही नहीं सकता. तो बेसिकली ये चीजें ऑर्डिनरी पर्सन तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन को अगर आप चारवाक फिलॉसफी समझाओगे तो वो समझ सकता है, क्योंकि चारवाक फिलॉसफी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसलिए चारवाक फिलॉसफी ये बड़ी अप्लाई की जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनको. इसलिए चारवाक फिलॉसफी को हम लोकायत मत भी बोलते हैं. ओके, वी विल सी इट इन डिटेल. लोकायत मत, ओके, लोकायत मत फिलॉसफी भी बोलते हैं. लोकायत मत मीन्स दिस वर्ल्डली पॉपुलर. चारवाक फिलॉसफी इज वेरी पॉपुलर इन दिस वर्ल्ड, ओके, दिस वर्ल्डली पॉपुलर. एंड चारवाक ऑल्सो मीन्स कॉमनर, कॉमन पर्सन. ओके, चारवाक ऑल्सो मीन्स कॉमनर बिकॉज इट अपील्स टू ए कॉमन पर्सन ऑल्सो. ओके, तो वाई चारवाक फिलॉसफी डेवलप्ड? बिकॉज देयर वर सो मच रिचुअलिज्म, ओके, and it is not possible for an ordinary person to basically to perform all those rituals, okay, and those rituals demand sacrifices. Okay, priest used to demand a lot of things, and it was not possible for the poor people or an ordinary person to basically fulfill all the desires of priestly class. So as a retaliation to your Brahminical thoughts, your ritualism, your Upanishadic thoughts, Charvak philosophy was developed. And there was no place for spirituality in Charvak philosophy. Okay, but we don't find any systematic work of Charvak. Okay, there is no book exclusively deals with Charvak philosophy. Okay, so basically there was the exploitation of masses by the petty rulers and monks and the political and social crisis of the Upanishadic period. Okay, and as a retaliation to that, Charvak philosophy developed. Okay, now
when Charvak philosophy, your basically Charvak thoughts declined. Okay, basically when Jainism and Buddhism developed, okay, they also developed as a retaliation to your Hinduism. But when Buddhism and Jainism developed, they promoted spirituality. And Jainism and Buddhism, the development of Jainism and Buddhism result into the decline of Charvak thoughts. Okay, till that time, Charvak philosophy was very much popular, but it promoted materialistic deeds, and materialistic deeds, if promoted, then it is not beneficial for spiritual person. Basically, if you want to pray God or you want to pray any transcendental entity, then you need to develop spiritual thoughts, or you need to promote spiritual thoughts. Okay, तो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करने के लिए पहले आपको मेटेरियलिज्म को रिफ्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में मेटेरियलिज्म आपका पहले से भरा हुआ था. ठीक है, इस थियरी को हम कहते हैं रिफ्यूटेशन एंड जस्टिफिकेशन. ओके, इफ देयर इज सम थॉट इन योर माइंड, ओके, and if I want to put a new thought in your mind, then first of all I have to refute your earlier thought, and then I will put my new thought. So refutation and justification means refutation of earlier thought, and then I will justify my new thought. Okay, in this way radicalization is also done. Okay, जो भी आपके दिमाग में पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा सब गलत है भाई, फिर मुझे आपके दिमाग में जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपके दिमाग में भरना पड़ेगा. अगर मैंने आपकी थॉट को रिफ्यूट करे बिना आपके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश की ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वहां पे हो जाएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स. और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स जब होगा तो मैं कभी भी आपका माइंड वॉश नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी थॉट्स को पहले मुझे रिफ्यूट करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं रिफ्यूटेशन एंड जस्टिफिकेशन. ओके, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है आपका, पहले इन्होंने मेटेरियलिज्म को क्या किया, रिफ्यूट किया कि मेटेरियलिज्म आपको जिंदगी में कभी भी आपको शांति नहीं दे सकता. आप खाते पीते रहोगे, आज आपके पास कुछ है खाने को, कल नहीं होगा. इससे आपको कभी भी लिबरेशन नहीं मिलेगा, आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगा, आपको ब्लिस नहीं मिलेगा. यानी कि मेटेरियलिज्म आपकी लाइफ का एम नहीं है. तो पहले उन्होंने चरवाका थॉट्स को रिफ्यूट किया, और उसको रिफ्यूट करने के बाद फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म आपके इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि चारवाक फिलोसफी का ही पीछे छूट गई. तो चारवाक फिलोसफी किसके रिटेलिएशन में आई, जो आपका ब्रह्मनिकल जो आपके थॉट्स थे, उपनिषदिक थॉट्स थे, रिचुअल्स बहुत ज्यादा प्रमोट थे, चारवाक आई. चारवाक डिक्लाइन क्यों करी, बुद्धिज्म और जैनिज्म की वजह से. ओके, सो बेसिकली हु इज द फाउंडर ऑफ चारवाक फिलोसफी, बृहस्पति. ओके, बृहस्पति ए हेरेटिकल टीचर. हेरेटिकल मीन्स हेट्रोडॉक्स. ओके, हेरेटिकल बिलोंग्स टू हेट्रोडॉक्स. So heterodox means one who doesn't believe in the authority of Vedas. तो चारवाक फिलोसफी जो है, it doesn't believe in the authority of Vedas. Heterodox. Okay, you can read in detail about heterodox in our introductory lectures. Okay, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया. तो heterodox वो लोग होते हैं जो वेदास में बिलीव नहीं करते, मतलब अथॉरिटी में. अब हम ये नहीं कहते कि वेदास एग्जिस्ट नहीं करते, वेदास तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि वेदास आपके वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक है आपकी, मान लो हम पॉलिटी की बुक ले लेते हैं, मान लो कोई लक्ष्मीकांत. ओके, पॉलिटी की एक बुक आती है, बड़ी फेमस बुक है लक्ष्मीकांत. अब लक्ष्मीकांत बुक तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो पब्लिश हुई है, वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. अब हो सकता है मैं ये बोलूं कि उसमें जो लिखा है वो वैलिड नहीं है, और आप ये बोलो कि उसमें जो लिखा है वो वैलिड है. ओके, लेकिन लक्ष्मीकांत तो एग्जिस्ट करती है, ऐसे वेदास तो एग्जिस्ट करते हैं. चारवाक फिलोसफी ये कभी नहीं बोलती कि वेदास एग्जिस्ट नहीं करते, वो बोलते हैं वेदास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, दैट इज नॉट वैलिड. चारवाक फिलोसफी के हिसाब से वेदास आर बेसिकली रिटन बाय ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर देयर लाइवलीहुड. दे आर नॉट रिटन बाय गॉड. ओके, दे आर रिटन बाय ऑर्डिनरी पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड. और उसमें वो बोलते हैं ब्रह्मनिकल, जो आपका ब्रह्मनिकल क्लास है उसने लिखा है, प्रिस्टली क्लास ने लिखा है अपना जीवन यापन करने के लिए. बोलते हैं दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, दे आर वेग. तो बेसिकली जो चारवाक फिलोसफी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, वो इन्होंने वेदास को रिफ्यूट किया है. दे हैव रिफ्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. अकॉर्डिंग टू देम वेदास आर फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसी. ओके, दैट्स व्हाई देयर फिलोसफी इज हेट्रोडॉक्स. एंड बृहस्पति इज बेसिकली वन ऑफ द heterodox philosopher. Okay, he is well known for heterodoxy. Okay, he never believed in the authority of Vedas. Okay, so Brihaspati is the basically your propounder. Okay, so Charvak, basically the chief disciple was Brihaspati. Charvak is not a proper name but a common name given to the materialist. Okay, we already discussed this.
Now, what is the basically the concept of Charvak philosophy or the crux of Charvak philosophy? If I will define it in one line, then it basically says that eat, drink and be merry. Okay, खाओ पियो मस्त रहो. ना तो स्वर्ग कुछ होता है, ना नरक कुछ होता है, ना गॉड कुछ होता है, ना सोल कुछ होता है. जो इस वर्ल्ड में प्लेजेंट कंडीशन में है, those who are living in pleasant condition, they are in heaven, and those who are living in painful condition, they are in hell, according to चारवाक. चारवाक फिलोसफी का एसेंस ये है कि एक बार आपकी बॉडी डेस्ट्रॉय हो गई, एक बार आप अगर आपकी डेथ हो गई, उसके बाद आप वापस से कैसे रीबर्थ हो सकता है. तो उनका कहना ये एक ही लाइफ है ये आपकी. इस लाइफ में आपको द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्लेजर. जितना मजा लेना है उतना ले लो, एंड टू मिनिमाइज द पेन. बोला अच्छा खाओ, ड्रिंक बटर, उन्होंने उस टाइम बोला था ड्रिंक बटर, बोला घी पियो, आपके पास पैसा नहीं है उधार ले लो, और मस्त रहो, बी मैरी. ये चारवाक की फिलॉसफी है. और इसी वजह से चारवाक बेसिकली आपके किसी मोरल ड्यूटी या धर्मा वगैरह में बिलीव नहीं करते. दैट्स व्हाई चारवाक फिलॉसफी फाइनली लीड्स टू हेडोनिज्म. सो हेडोनिज्म बेसिकली it is an ethical concept, ethical theory which says that pleasure is the highest aim of our life. Hedonism says that pleasure is the highest aim of our life. तो चारवाक फिलॉसफी बोलती है कि you have to maximize your pleasure and minimize your pain. और आपको उसके लिए खाना है, पीना है, अपनी बॉडी को मस्त रखना है, कोई चिंता नहीं करनी. हेवन हेल की ऐसा कुछ नहीं होता, लिबरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती. यही जो आपकी बॉडी है यही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, इस थियोरी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, देहात्मवाद. ओके, तो देहात्मवाद पढ़ेंगे हम आगे जाके. बॉडी सोल थियोरी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, बाकी मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो 5 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो जरूर देख लीजिए. अदरवाइज ये आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी बहुत अच्छी तरीके से. अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे अगर आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देखोगे. ओके, तो जो चारवाक है बेसिकली इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड चार. ओके, इट मींस टू ईट और टू च्यू. टू ईट और टू च्यू मींस चारवाक बेसिकली they believe in materialism and they basically eat up their own words. Okay, ये चार वाक जो आया आपका बेसिकली ये आया टू ईट और टू चू. इसका आगे हम मीनिंग देखते हैं डिटेल में. एंड चार वाक मीन्स वन हुज वर्ड्स आर स्वीट. मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं इनकी बहुत पॉपुलर है, इनकी ना बातें बहुत अपील करती है. अगर मैं आपको बोलूं खाओ पियो मस्त रहो, वो आपको अपील करेगा ही. ओके, दे आर वेरी स्वीट टंग्ड, और इसलिए इनकी डॉक्ट्रिन इज वेरी सुपरफिशियली अट्रैक्टिव, सबको अट्रैक्ट करती है. यहाँ पे आप ना अष्टांग मार्ग की बात कर रहे हो, ना गौतम बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ की बात कर रहे हो, ना आप जैना के त्रिरत्ना की बात कर रहे हो. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप सीधी सीधी बात कर रहे हो, खाओ पियो मस्त रहो, कुछ नहीं होता इसके अलावा. ओके, इसलिए ये लोगों को बड़ी अपील करती है. सो चारवाक मीन्स वन हु ईट अप हिज ओन वर्ड्स ऑल मोरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस. यानी उसको मतलब ही नहीं है एथिकलिटी और मोरलिटी से. ओके, सो दिस मीन्स ईट अप हिज ओन वर्ड्स. ये मतलब है चारवाक जो चार से डिराइव हुआ है आपका, उसका मतलब है दे डोंट हैव एनी बेसिकली मोरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस. वो बात ही नहीं करते हैं इसकी एथिकलिटी और मोरलिटी की. दे बेसिकली एट और च्यू मोरलिटी एंड एथिकलिटी. दे डोंट बिलीव इन एथिकलिटी एंड मोरलिटी, क्योंकि उनके हिसाब से एथिकल और मोरल तब होना है जब हमें लिबरेशन चाहिए. लिबरेशन होता ही नहीं है कुछ. So why there is a need to be ethical and moral? Okay, Charvak philosophy basically supports materialism, and it is also known as Lokayat. I already basically described this word. Lokayat, a commoner who is of low and unrefined taste. This is one meaning, and second meaning is this worldly popular. Okay, you can write down here this worldly popular. Their philosophy is very much popular. This worldly popular. Okay, Lokayat mat, this worldly popular. Okay, because their thoughts are very much attractive, they appeal to everyone. Okay, आपको कोई बोले खाओ पियो मस्त रहो, आपको तो मजा आ जाएगा. ओके, सो इसका जो आपका बेसिकली इसको एक और नाम दिया जाता है चारवाक फिलॉसफी को, आर्च हेरेटिक. आर्च हेरेटिक का मतलब है यहाँ पे आर्च हेरेटिक, यू नो हेट्रोडॉक्स. सो वन हु इज significantly heterodox means one who doesn't believe in God, doesn't believe in soul, doesn't believe in your Vedas. That is arch heretic. Arch heretic means
if I will make a basically hierarchy of heterodoxy, then it is at the highest level. अगर आपका हेट्रोडॉक्सी में भी कोई हाईएस्ट लेवल पे होगा तो उसको हम बोलेंगे आर्च हेरेटिक। और जो आपका बृहस्पति है, जो इसका प्रोपाउंडर है, वो आर्च हेरेटिक था, मतलब ना वेदास को माना है, ना इन्होंने गॉड को माना है, ओके, सोल किसी को चीज को नहीं माना, ओके। जब वेदास को नहीं माना तो गॉड को क्यों मानेंगे? क्योंकि वेदास ये माना जाता है कि वेदास आर रिटन बाय गॉड, so if they have refuted god they have also refuted god, okay। so materialist जो होता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि वो बेसिकली लोगों की लाइफ बर्बाद करते थे, ठीक है। ये बाकी लोगों ने बोला है लेकिन ऐसा नहीं है। चारवाक जो आपका थॉट्स है वो उसके अपने थॉट्स है, लोग अगर उसको फॉलो करते हैं ये लोगों की गलती है। चारवाक ने किसी को जबरदस्ती नहीं बोला कि आप मेरी थॉट्स को फॉलो करो, ओके। तो ये जो क्रिटिक्स है वो ये बात बोलते हैं कि जो मेटेरियलिस्ट होते हैं वो खुद को वाइज समझते हैं और दूसरे लोगों की लाइफ को रूइन करते हैं, खराब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चारवाक फिलॉसफी जब इतनी पॉपुलर हुई, क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई चारवाक जो फिलॉसफी एकदम सही है, क्योंकि आपके जो रिचुअल्स परफॉर्म कर करके इतने सारे उपनिषद उनको समझ नहीं आता था, इतने सारे सेक्रीफाइसेस देके प्रिस्टली क्लास को इतना डोनेट कर करके वो बेचारा कॉमनर जो था, ऑर्डिनरी मैन था, वो तो बर्बाद हो चुका था। तो चारवाक फिलॉसफी ने एक रास्ता दिखाया। ऑल्दो चारवाक फिलॉसफी मेटेरियलिज्म को प्रमोट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें आपकी सही भी बताती है, ओके। हम आगे बात करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जो पॉइंट है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द क्रिटिक्स के हिसाब से मेटेरियलिस्ट ऐसे होते हैं, लेकिन मेटेरियलिस्ट ऐसे नहीं होते हैं, ओके। तो हमें बेसिकली एक आपका एक सोर्स है मजीदा नायिका, ओके, मजीदा नायिका। यहाँ पे हमें एक मेटेरियलिस्ट के बारे में पता चलता है, ओके। जो आपका एक मेटेरियलिस्ट है उनका नाम है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो अजिता केशकाम्बलिन, ओके, अजिता केशक काम्बलिन, ओके। ये आपके एक मेटेरियलिस्ट है, ओके। तो दिस इज ए सम सॉर्ट ऑफ लिटरेरी सोर्स मजीदा नायिका। we find reference regarding a materialist अजिता केश काम्बलिन, ओके। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो जो अजिता केश काम्बलिन थे, he believed only in perception and four elements. He believed in perception and four elements, and this is the crux of your Charvak philosophy. Those who believe in Charvak philosophy, they also believe in perception and four elements. Now, what is perception? I already covered in introductory class, and in detail I will cover it in your Charvak philosophy, okay. And if you have any problem, then you can write in the comment box, okay. I will basically try to answer, okay. If you have any query, I will try to answer, okay. So I already covered this point that बृहस्पति, ओके, बृहस्पति ने जो आपका लिखा था सूत्र मीन्स जो ये लिखते थे अपनी फिलॉसफी के बारे में, उसको हम सूत्र कहते हैं, ओके। तो बेसिकली बृहस्पति ने जो लिखा वो तो आपका भी है नहीं, पेरिश हो गया, और इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स है नहीं, ओके। एक आपका कोई सोर्स था बेसिकली जयऋषि भट्ट, ठीक है, इन्होंने एक लिखा था सोर्स जिसमें चारवाक के बारे में पता चलता है। दिस इज द सोर्स, ओके, तत्वो पल्लव सिम्मा, ओके, दिस इज वन ऑफ द सोर्स, ओके। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है यूपीएससी के लिए, बाकी और कहीं पे छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव कहीं पे क्वेश्चन कोई आ जाए उसके लिए, बाकी यूपीएससी में तो आपका जो है वो आगे वाला पार्ट जो है वही काम का है, ओके। तो और बाकी कहाँ से मिलता है हमें सोर्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बुद्धिस्ट लिटरेचर से मिल जाता है, वेदास से मिल जाता है, जिन्होंने बेसिकली जैसे मान लो आज की डेट में मैंने कुछ बोला और मैंने उसमें बुक नहीं लिखी, लेकिन आप कोई बुक लिखते हो और उसमें मुझे क्रिटिसाइज करते हो कि भाई उसने ये बोला था, ये गलत था, तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मेरी बुक में नहीं मिलेगी, आपकी बुक में मिलेगी। ऐसा ही चारवाक के साथ था, सिमिलर केस वाज विद चारवाक फिलॉसफी। चारवाक ने जो बोला, बृहस्पति ने जो बोला, वो चीजें कहीं पे भी आपकी कोडिफाइड नहीं हो पाई, ठीक है, लिखी नहीं गई, लेकिन उसके बारे में जब उसको क्रिटिसाइज किया बुद्धिज्म ने कि भाई चारवाक में ये दिक्कत थी, या जैनिज्म ने जब उसको क्रिटिसाइज किया, या वेदास में उसका क्रिटिसिज्म लिखा गया, तो उससे हमें पता चलता है कि चारवाक बेसिकली क्या बोलते थे और क्या उनकी फिलॉसफी थी, ओके। सो वी हैव टू रिमेन सेटिस्फाइड विद द मीगर एंड वन साइडेड अकाउंट्स ऑफ इट। अब आप समझो इस बात को, अगर हमें चारवाक का ओरिजिनल सोर्स नहीं मिलता है और उसके अलावा बाकी सोर्स मिलते हैं, उन्होंने तो उसको क्रिटिसाइज ही किया होगा। यानी चारवाक फिलॉसफी जो रियलिटी में है उसकी रियलिटी हमें अभी भी नहीं पता, सिर्फ इन्होंने उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए। हो सकता है चारवाक फिलॉसफी जब इतनी पॉपुलर थी तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो हमें नहीं पता चलता है क्योंकि जो उससे रिलेटेड कोई भी आपका ओरिजिनल लिटरेरी सोर्स है ही नहीं, ओके। सो वी हैव टू रिमेन सेटिस्फाइड on the basis of these
Buddhistic literatures or Vedas or other sources. Okay, there is no original basically book or source related to चारवाक philosophy. Okay, तो चारवाक बेसिकली, चारवाक जो आपके हैं उन्होंने 4 एलिमेंट्स को माना है सिर्फ। देखो 4 एलिमेंट्स को माना है और इसके अलावा उन्होंने कोई चीज नहीं मानी है इन 4 एलिमेंट्स के अलावा। ठीक है, इन 4 एलिमेंट्स के बेसिस पे बाकी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर, दीज आर द सिंबल्स। ओके, दीज आर द सिंबल्स। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इसके सिंबल्स होते हैं। ओके, तो दीज आर द सिंबल्स। आपको ये सिंबल्स याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने 4 माने, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। अब आप इसमें देखोगे तो दे हैव नॉट बिलीव्ड इनटू आकाश। आकाश को नहीं माना है। आकाश को हम यहां पे बोलते हैं ईथर। ओके, जब फिलॉसफी में हम उसको बोलेंगे ईथर। सो ईथर मींस आकाश। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड आकाश। Why they have not accepted Akash, that we will see. Okay, that is a probable question, because science also accept atoms, but science accept atoms of earth, air, water, fire and also your Akash. But आपका जो पंच तत्व होता है ना, यहाँ पे पंच तत्व में नहीं माना, इन्होंने 4 ही तत्व माने। तो वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो इसके बाद आकाश इन्होंने नहीं माना, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंस। ओके, अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबने, साइंस ने माना, इन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना आकाश? जब 4 मान रहे हो तो आकाश भी मानो। सो दैट वी विल सी इन डिटेल। ओके, अब यहां तक आज यहाँ आपका इंट्रोडक्टरी है। कल अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं चारवाक फिलॉसफी जो आपका बेसिक है, जो हमारे अब मेंस, जो हमारा बेसिक मतलब मेन जो शुरू होती है फिलॉसफी इसकी चारवाक की, वो यहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे हम इनकी एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे, फिर मेटाफिजिक्स देखेंगे, फिर इनकी एथिक्स देखेंगे। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें हम चारवाक को आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब, शेयर। ओके, और आपको अगर कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. I will try to answer all your queries. Okay, so thank you very much.